before that, since our existence as the educational institution, our university have proudly produced 2 Bharat Ratnas in Khan Abdul Ghaffar Khan, Indira Gandhi, and Dr. Zakir Hussain, after whom this college is named, who was the Vice Chancellor of this university and later became the President of India. So we produced 2 Bharat Ratnas. We have produced 7 Padma Vibhushans, 27 Padma Shri Padma Bhushans, and about 50 Padma Shri awardees from our university. और वैसे तो as the country we keep longing for gold medals in the Olympics, our engineering college has produced an Olympic gold medalist in Zafar Iqbal. Civil engineering, he graduated from and he got the gold medal in the Olympics, and that is also again a proud moment for all of us. Besides that, we've been given many heads of states from our university. So that is the kind of rich legacy that I'm talking about. What do we expect from our alumni? First of all, we need your help for building the perception of the engineering college. Rankings में perception के points होते हैं, that is where we fail. Reasons multiple हैं, बहुत से आप लोग जानते भी हैं. बहुत वक्तों पर हमारी जो है वो negative publicity भी हो जाती है. People use it for the political gains, media glare. We just want you to help us for the truth to prevail. कोई हमें exaggeration नहीं चाहिए. सिर्फ truth prevail कर जाए, that is what we need your help for. You must wear the name of the Aligarh Muslim University and the engineering college on your sleeves. आप जहाँ भी जाएं, आपका LinkedIn profile हो, आपका CV हो, proudly mention that you are a product of the Aligarh Muslim University. Why I'm saying this? Because the more the reputation of the university and the engineering college goes up, likewise the reputation of the alumni will also go up. This is a mutually reinforcing relationship. The more prominent the college becomes, the more prominent the alumni would be, and more prominent the alumni get, more prominent the college would be. तो एक mutually reinforcing पैराडाइम होगा अगर हम अपने कॉलेज का नाम ऊंचा करेंगे. नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं. बहुत सारी कंपनीज नहीं आना चाहती हैं अलीगढ़. थोड़ी हमें लोकेशनल डिसएडवांटेज भी है. आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कॉलेज अच्छा है तो लोकेशनल डिसएडवांटेज का कोई मानी नहीं होता. I won't agree with you completely because I have been an alumnus of IIT Kanpur as well as IIT Delhi. So when somebody asks me to compare both the IITs, they are all top class institutions. IIT Kanpur, I personally feel that it is academically superior. But then IIT Delhi enjoys a better reputation because of its location in the NCR, in the National Capital Region. Placement IIT Delhi का अच्छा हो जाता है. बहुत सारे industry sponsored labs IIT Delhi में ज़्यादा हैं. एक्सपोजर उनके स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिल जाता है. तो ऐसा नहीं है कि लोकेशन का कोई फ़र्क नहीं होता. लोकेशन का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और हम कोशिश करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करें इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर प्लेसमेंट टू आवर स्टूडेंट्स. फिर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं रिसर्च, बिकॉज रिसर्च आउटपुट्स दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द रैंकिंग. देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन हेल्प अस विद. आप इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. बच्चों के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है. आप फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. आप में से जो लोग R&D में हो या इंडस्ट्री में भी हो, यू गिव अस लाइव प्रोजेक्ट्स टू वर्क अपॉन. स्टूडेंट्स उस पर काम करेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा एंड देन ऑब्वियसली थिंग्स विल प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन. हमारे कलमस 87 बैच के हैं. ताहिर मद्रास वाला, उनकी कंपनी ओपन सिलिकॉन वैली में. दैट्स अ 500 स्ट्रॉन्ग कंपनी. उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने रिटायर्ड वर्क स्टेशंस आपको दे देंगे. लेट अस सेट अप अ VLSI डिजाइन सेंटर. तो इवन देयर रिटायर्ड वर्क स्टेशंस वर गुड इनफ फॉर अस. भाई वहाँ पे नया वर्जन आ गया सॉफ्टवेयर का या वर्क स्टेशंस का, उन्होंने वो प्रोक्योर कर लिया. जो पिछला वर्जन था, इवन दैट इज गुड फॉर अस. सो यू हैव टू लुक फॉर वेज एंड मीन्स इन व्हिच यू कैन कंट्रीब्यूट टू आवर रिसर्च. फिर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इन बिल्डिंग कोलैबोरेशंस.
collaborations with other universities, collaborations with the industry. बहुत सारे हमारे alumni हैं, they have been helping us. Ohio State University, Columbus, Arizona State University, and so many other universities that we have collaboration with. The alumni have been instrumental in providing that collaboration. Minimum that you can do is share your experience with our students. मैं तो कहता हूँ कि आप कभी भी इंडिया आ रहे हो, drop in here for a day or two, interact with our students. आप कुछ नहीं भी बोलेंगे, सिर्फ आप आकर खड़े हो जाएंगे, that will be a motivation for our students. कि ये इसी कॉलेज के 25 साल, 26 साल, 27 साल जब भी आप आएंगे तब के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, and they have done so well, so the students will get motivated. Why can't we do well as well? तो आप आकर interact. Students, they watch the seniors very closely. The way you speak, the way you react to their questions, the way you take their questions, the way you carry yourself, all this will be a learning for our current students. इस सिलसिले में हमारा एक प्रोग्राम भी है यूनिवर्सिटी लेवल का, अलीग एकेडमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम. It started with an alumnus in Canada, जो समर्स में आते थे on his own cost. 2 महीने यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते थे, गेस्ट हाउस का खुद पेमेंट करते थे वो, और 2 महीने वो क्लासेस लेते थे बायोलॉजी की, बायोसाइंसेस में हमारे यूनिवर्सिटी में. उसको वो समर यूनिवर्सिटी कहा करते थे. अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट हिज लेगेसी कंटिन्यूज. अभी भी हम वो प्रोग्राम रन करते हैं. आप लोग जब भी आ रहे हैं, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, 1 हफ्ता आप रहिए तो 7 लेक्चर या जो भी आप प्लान करें, यू कैन हेल्प अस. नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं फेस टू फेस मीटिंग, सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम यू सो मेनी थिंग्स बिसाइड्स जस्ट द टेक्निकल एक्सपर्टीज. फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटरिंग का. देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ. घर में अम्मा अब्बा और बच्चों के बीच में गैप रहता है. The elder siblings are like the bridge between the parents and the younger siblings. यहाँ पर एक हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टूडेंट्स से गैप मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है. नहीं मेंटेन करेंगे तो स्टूडेंट्स उसकी अनड्यू एडवांटेज लेना चाहेंगे कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, सर क्या पूछ रहे हैं एग्जाम में वो बताइए. तो गैप मेंटेन करना ज़रूरी है. अब वो गैप जब मेंटेन हो जाता है तो फिर वो स्टूडेंट्स फ्री नहीं होते, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते. दैट इज़ वेयर यू कैन स्टेप इन एज द एल्डर सिबलिंग्स. आप एक बड़े भाई बड़े बहन की तरह उनकी मदद कर सकते हैं. आप उनकी प्रॉब्लम्स को ओपनली उनसे डिस्कस कीजिए, हमको कम्युनिकेट कीजिए. यू स्ट्रेस अपॉन अस कि नहीं भाई इनकी जेन्युइन बात है, दैट शुड बी अकोमोडेटेड, दैट शुड बी एग्रीड अपॉन. तो मेंटरिंग में अलुमनाई का रोल बहुत क्रूशियल है. समथिंग दैट नोबडी कैन फिल. फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस डेफिनेटली यस. अब उसमें बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं ऑलमोस्ट ड्राइड डाउन, सिर्फ मेंटेनेंस के फंड्स हमको मिल रहे हैं. अब नई बिल्डिंग्स के लिए वेयर टू लुक फॉर. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी हमको बनाना है. अब उसमें चांसलर साहब से बात चल रही है, फॉर्मर चांसलर से, ही माइट प्रोवाइड. हमारे यहाँ ये फ्रैंक एंड डबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स बना. डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम ने 20 करोड़ के करीब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, पूरा बन गया. रीयूनियन के जो पहले बैचेस हुए, हमारे बैच ने भी एक क्लासरूम डोनेट किया, उसके बाद वाले बैच ने भी एक क्लासरूम डोनेट किया. तो अब बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं. कोर्सेज नया शुरू कर दिया हमने. बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कर दिया, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी शुरू कर चुके हैं, बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो इस साल से शुरू हो रहा है. उनके लिए क्लासरूम कहाँ से आए? तो दैट इज अ नीड, अ प्रेसिंग नीड फॉर ऑल ऑफ अस. उसके अलावा जो क्लासरूम्स हैं उनको स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया. बट स्टिल देयर आर मेनी क्लासरूम्स वेयर वी डोंट हैव द मॉडर्न टीचिंग एड्स. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दोज थिंग्स. फंड रेजिंग कर सकते हैं आप ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो मेनी अलुमनाई एसोसिएशंस दे डू फंड रेजिंग. You may be in the influential position, you can do the fundraising for the university. Research and projects में जैसा मैंने कहा आप हेल्प कर सकते हैं. Scholarship में आप हेल्प कर सकते हैं. Even though the tuition fees in the university is very meager,
अभी भी आज भी आप लोगों ने भी फीस पे की, आपको पता है इंडिया टुडे की रैंकिंग में वी वर सेकंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, है ना। सबसे कम फीस अभी भी साल भर की फीस 6 से 7 हज़ार रुपए है किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। नो वेयर यू विल गेट एजुकेशन ऑन दैट कॉस्ट। एमबीबीएस बच्चा पूरा एमबीबीएस हमारे यूनिवर्सिटी से करके चला जाता है 60,000 में, 4.5 साल 5.5 साल गुजार के सिर्फ 60,000 में एमबीबीएस कर देता है। तो उसके बावजूद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप्स की जरूरत पड़ती है, और फिर हमें फोकस स्कॉलरशिप्स भी कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पीएचडी फेलोशिप्स, पीएचडी फेलोशिप मिलती है सिर्फ 8,000। वो एक एज होती है जिसमें द स्टूडेंट हैज मैच्योर्ड, इज लुकिंग टू स्टार्ट अ फैमिली और ही हैज टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आप तुम जॉब करो, पैसे कमाओ। वो 8,000 रुपए में कैसे पीएचडी में, तो अच्छे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते। जेआरएफ जो लोग देते हैं उनको 32,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता है, विच इज ठीक है, मतलब चल जाता है काम 32,000 में। लेकिन हम वो 32,000 भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलते, रिसर्च आउटपुट नहीं मिलता, और स्टूडेंट्स गो टू अदर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर एचआरडी की स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वी गेट गवर्न बाय यूजीसी, तो यूजीसी से फंड यूनिवर्सिटी को आता है, यूनिवर्सिटी फिर बांटती है, तो हम तक पहुँचते पहुँचते वो सारा पैसा खुश्क हो चुका होता है, सूख चुका होता है, बहुत कम मिल पाता है। तो अगर 1-2 फेलोशिप्स आप लोग इंस्टीट्यूट करें, या हर डिपार्टमेंट के जो एलुमनस हैं वो सब हर साल एक स्कॉलरशिप हम इंस्टीट्यूट करते हैं पीएचडी फेलोशिप, सो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट गुड पीएचडी स्टूडेंट्स दैट वे। या और छोटी चीज मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप करना चाहें तो स्वयं, विच इज द मूक्स कोर्सेज, ऑनलाइन मूक्स कोर्सेज, राइट, मैसिव ऑनलाइन। वो बच्चा पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, एक स्किल एनहांसमेंट होगा उसका, एंड इफ ही वांट्स टू टेक द एग्जाम एंड गेट द सर्टिफिकेट, द फीस इज वेरी मीगर, सिर्फ 1,000 रुपए है। लेकिन जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे वो 1,000 रुपए भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, सिट थ्रू कर सकते हैं वो, लेकिन अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसको कहीं शो करना है, तो 1,000 रुपए चाहिए। तो आप 1 कोर्स, 2 कोर्स, 5 कोर्स आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं साल में। उसमें फ़ायदा क्या होगा, जब जो बच्चे अफोर्ड भी कर सकते हैं वो 5 कोर्स कर लेंगे, 10 कोर्स कर लेंगे, ज़्यादा कोर्सेज कर लेंगे, स्किल एनहांसमेंट उसका बढ़ जाएगा। तो एक स्मॉल यूनिट है विच यू कैन कंट्रीब्यूट। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फोकस स्कॉलरशिप की बात सोची जाए, बजाय इसके कि भाई हम एक जनरल स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं बच्चों को, पीएचडी फेलोशिप्स या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, और यू थिंक स्काई इज द लिमिट व्हाट यू कैन डू। फिर प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप सेल हमने बनाया हुआ, आल इमरान इफ इज अराउंड, ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। वो ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, यू नो, ही हैज बीन द ब्रिज बिटवीन मी एंड योर बैचमेट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। तो या वी शुड all the ways to keep communicating with Tabriz and company and other people. Promoting entrepreneurship, give them business ideas, थोड़ा उनका आप encouragement करें, उनकी हिम्मत बनाएं। तो entrepreneurs हमारे यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं, निकल सकते हैं। फिर हमारी स्कीम है कशिश। ये क्या है? चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई बॉन्डिंग प्रोग्राम। आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है, यू आर हियर विद अस टुडे, but you are in a better position. You send your children to other universities or maybe the Western countries. You can afford that kind of education for them. हम चाहेंगे कि कभी आप अपने बच्चों को 1-2 हफ्ते के लिए लेकर आइए and let them spend time here in the university. Let them get a feel of the university that their parents graduated from. तो उसके लिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, कशिश means attraction. आप आइए, गेस्ट हाउस में आप ठहरिए, लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और ड्रामा क्लब हमारे यहाँ का देख सकते हैं, राइडिंग क्लब हमारे यहाँ, राइडिंग क्लब में बच्चे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में आके सोशल सर्विस करना चाहते हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्री से जो बच्चे आते हैं, वो उनको इतने सारे पेशेंट्स और इतनी नीड उनके सामने आती है, तो दे गेट मेस्मराइज्ड कि भाई यहाँ तो कितना सोशल काम हो सकता है। और मेडिकल कॉलेज केटर्स टू द नीड ऑफ द डाउनट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो कशिश का एक प्रोग्राम है विच यू कैन हेल्प अस विद। इसके अलावा एक बड़ा प्रोजेक्ट गेस्ट हाउस, एलुमनाई गेस्ट हाउस की बात हो रही है। गेस्ट हाउसेज हमारे हैं,
बट दे हैव द प्रायोरिटी फॉर द यूनिवर्सिटी फंक्शंस। अगर हम, जैसे आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि गेस्ट हाउस आप लोगों के लिए रिजर्व किया जाए, रिजर्व कर भी लेंगे आप, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस आ गई, कोई यूनिवर्सिटी की मीटिंग आ गई, तो फिर वो एविक्ट करा दी जाती है कि नहीं दे पाएंगे, यूनिवर्सिटी का फंक्शन है। तो व्हाई नॉट द अलुमनाई दे कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अ गेस्ट हाउस। एक एसोसिएशन, एक बैच कहे कि हम एक कमरा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अब उसकी रिजर्वेशन की प्रायोरिटी आपकी रहेगी। जब आप कोई नहीं आ रहा है तो हम दूसरों को भी अलॉट करेंगे, बट यू विल हैव द प्रायोरिटी। आप अपने अकॉर्डिंग उसका थीम सेट कर सकते हैं, उसके मेंटेनेंस, वो सब चीज़ें फिर आप लोग देखेंगे उसको। विल अटैच इट टू वन ऑफ द एग्जिस्टिंग गेस्ट हाउसेस एंड दैट विल बी योर प्रायोरिटीज गेस्ट हाउस, अलुमनाई गेस्ट हाउस। बहुत सी जगहों पर लोगों ने बनवाया अलुमनाई गेस्ट हाउस। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। फिर एक चीज़ है अली कनेक्ट, ये हमारे अलुमनाई ने बनवाया हुआ है। दिस इज इसकी iOS एंड्रॉयड ऐप भी है। दिस इज अ डायनामिक प्लेटफॉर्म इन विच you get registered and you keep updating your information. What is your current location? Which company do you work for? If you have any vacancies, you post on the message boards. Students, they can interact, they can find out, they can take help from you. तो इस अली कनेक्ट AMU सर्वर पर आ गया, aliconnect.amu.ac.in। उसमें आप लोग रजिस्टर करें। मेक इट डायनामिक, मेक इट यूजफुल, मेक इट इंटरैक्टिव, मेक इट वाइब्रेंट एंड विजिबल। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, बट यू ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट विद अस। और थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीज आर टफ टाइम्स, खासतौर से पैंडेमिक के बाद वी सी अ सी चेंज इन दी स्टूडेंट्स। पैंडेमिक ने हम सब में जंग लगा दिया। बच्चे तो बच्चे, स्टूडेंट्स तो बहुत ही हेल्थ भी, उनकी मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम है बच्चों को बहुत ज़्यादा पैंडेमिक के बाद से। तो वी नीड समबडी टू मोटिवेट देम। और बहुत लेड बैक हो गए हैं, करियर का उतना ख्याल नहीं कर रहे हैं बच्चे। हमारी बात दैट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, तो ये तो करते ही रहते हैं इस तरह की बात। बट इफ यू कम एंड टेल देम, अब देयर आर सो मेनी स्टोरीज इफ आई स्टार्ट टेलिंग यू, यू नो आई ऑलरेडी टेकन सो मच टाइम। TPO बताते हैं, कंपनी आ रही है, 100 बच्चों ने रजिस्टर किया, प्री प्लेसमेंट के लिए सिर्फ 20 बच्चे बैठे हुए हैं। वी हैव टू कट अ सॉरी फिगर, फोन कर करके बुलाना पड़ रहा है कि भाई कहाँ हो, आओ। और वो कह रहे हैं कि हम इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर रजिस्टर क्यों किया था? आके कम से कम प्री प्लेसमेंट सुन लो, उसके बाद डिसाइड करो। तो मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत है। एक मैं इंसिडेंस और बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों से मैंने शेयर किया अभी। नवंबर 2021, a lady professor from the United States, she contacted me through somebody that I want 2 girl students for the master's program with GRE waiver, सिर्फ TOEFL IELTS देना and full funding. Very good opportunity. I recommended 2 girls. November 2021 में start हुआ, January 2022 those girls were sitting over there University of Minnesota, which is a good university. फिर उन्होंने कहा कि एक गर्ल स्टूडेंट और चाहिए। मैंने कहा कि एक आध बॉयज़ को भी ले लीजिए, 2 गर्ल्स को भी रिकमेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, माय प्रेफरेंस इज गर्ल स्टूडेंट। आई सेड फेयर एनफ। मैंने एक गर्ल स्टूडेंट को और रिकमेंड किया, उन्होंने उसको इंटरव्यू किया ऑनलाइन एंड शी वाज आल्सो सेलेक्टेड। उसके वीज़ा पेपर्स नहीं आ रहे थे। मैंने कॉल किया, वीज़ा पेपर्स आप क्यों नहीं भेज रहे, उसके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं भेज रहे यहाँ 20? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली वी हैड अ सेटबैक। आई सेड व्हाट हैपेंड? I thought some personal thing may have happened on the personal front. She said कि वो 2 जो लड़कियों ने आपके यहाँ ज्वाइन किया था, उन्होंने हैरेसमेंट की कंप्लेंट कर दी है मेरे खिलाफ। You are a lady professor, the girl student, what kind of harassment? तो उन्होंने कहा नहीं, जिस प्रोजेक्ट में हमने फंड करके उनको बुलाया था, उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, we asked them to work a little extra so that we can meet the deadline. तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो काम नहीं करते, हम तो अलीगढ़ में 3 बजे के बाद काम नहीं करते थे, यहाँ भी नहीं करते। I was shocked. I called those girls up. मैंने कहा what are you doing? तुम्हारा हो गया एडमिशन, blocking the future girl student from AMU. Go and apologize. खैर उन्होंने apologize किया, नहीं किया। वो लेडी प्रोफेसर ने कहा कि भाई ठीक है, वो तीसरी बच्ची जो हमने कमिट किया था उसको तो हम ले लेंगे, but no more girl students from AMU anymore. Big loss. तो जब तक बच्चे, अभी यही बात हो रही थी, आर्ट स्टूडेंट आर लिविंग इन अ कोकून। अलीगढ़ के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, यहीं का हॉल, लाइब्रेरी, यहाँ किंग बने हुए। बाहर जाते हैं तब उनको एक तल्ख हकीकत का अंदाजा होता है कि हाउ टफ द आउटर वर्ल्ड इज। सो यू हैव टू मेक देम प्रिपेयर्ड फॉर दोज
challenges, for those hardships, for the life ahead. The alumni can contribute so much because you have been in these classrooms, you know the ins and outs, and now you have that added experience on your backs to carry on, right? तो बहुत सारी चलिए सीरियस बातें हो गई. To end with, again on a lighter note, but a true story again. एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट जो मशरूम हो रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक हमारे बच्चों का आप वाइवा ले लीजिए फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग लैब का. मैंने कहा यार कहाँ प्रोग्रामिंग किसी से करवा लोगे? हम चाहते हैं कि प्रोफेसर आ जाए तो हमारे कॉलेज की शान बढ़ जाएगी. ये तो खैर मैं चला गया. अब प्रोग्रामिंग तो बच्चों को आती नहीं थी. अब मेरे लेवल्स जो हैं वो नीचे होते जा रहे हैं. आखिर में नौबत ये आ गई, दैट वाज अक्रॉस द बोर्ड. आखिर में नौबत ये आ गई कि मैंने बच्चे से पूछा कि CPU क्या होता है. Somebody was Nokia also ना, Nokia कोई बता रहे थे, वर्किंग फॉर Nokia. हाँ, आप Nokia में काम कर रहे हैं. Towards the end I touch you also. तो उन बच्चों से पूछा कि CPU क्या होता है. तो वो बच्चा कह रहा है कोई डब्बा सा जो होवे. मैंने कहा डब्बे के अंदर क्या होता है? फिर कभी खोल के नहीं. मैंने कहा था किसी इनपुट डिवाइस का नाम बताओ. मैंने इनपुट डिवाइस ये तो हमने कभी सुनी ना. तो मैंने कहा कीबोर्ड जानते हो? कीबोर्ड? कहना हाँ हाँ जिसको उंगलियां चलावे. मैंने कहा हाँ वही कीबोर्ड. कहना हाँ वो तो देखा. मैंने कहा उसमें कितनी कीज होती हैं? कहना घनी होवे कभी गिनी ना. बहुत घनी होती, बहुत सारी होती, कभी गिनी नहीं. तो मैंने उसको वाइवा के बीच में भेजा कि जाओ गिन के आओ. गया गिन के आके कह रहा 100 के करीब हैं. फिर खैर वो चला गया. दूसरा लड़का आया, क्रॉस की बोर्ड है ये प्रॉब्लम. अब मेरा लेवल और नीचे. मैंने कहा कि किसी ऐसे फोन का नाम बताओ जो किसी फल के नाम पर, फ्रूट के नाम पर. हाँ फल के नाम पर ऐसा तो हमने कभी सुनी ना. मैंने कहा एप्पल. एप्पल सुना है? मैंने हाँ एप्पल तो सेब को कहवे. मैंने कहा सेब को तो कहवे. एप्पल नाम की कंप्यूटर कंपनी भी है. अच्छा. मैंने कहा आईफोन जानते हो? आईफोन? कहना आईफोन भी ना जाने. मैंने कहा स्मार्टफोन होता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? कि हम तो यूज़ करें. तो मैंने कहा ऐसे स्मार्टफोन होता है, आईफोन कहते हैं, एप्पल कंपनी बनाती है. तो कहने लगा मैं तो छोटी मोटी कंपनीज के यूज़ करूँ. मैंने कहा किसके यूज़ करते हो? ये नोकिया फोकिया. फिर एक स्टूडेंट आया, अब और लेवल नीचे. मैंने कहा भैया ए टाइप करना है, कैसे टाइप करना? क्या एक ही दाब देंगे. सही बताया तुमने यार. अच्छा ये बताओ कैपिटल ए टाइप करना है, कैसे करूंगा? सोच में पड़ गया. तुमने बोला वही एक ही जोर से दाब देंगे. So there is so much in the field of education that we can help us, being the privileged people who had been educated in a prime university, in a professional area, and we have that rich experience behind us to back us up. So I welcome you all again, and I'll request you to keep coming back and keep prodding us to do better. Thank you very much.